खट्टर सरकार तो किमें भी नहीं है। खट्टर सरकार का नाम में लेना बंद कर दो तो अच्छा रहोगे। खट्टर सरकार तो ऐसा काम करी है कि हमें आतंकवादी बना दी। उनको लगता भी यहाँ आतंकवादी कोई है, खालिस्तानी कोई है, तो उनके उठा के जेल में क्यों नहीं डालती वो? तारिक पे तारिक क्या हम मुकदमा जितना रहे हैं? हम यहाँ कोई आतंकवादी हैं, यहाँ हम माच क्या रहे हैं? हम हमारे अपना हक लेने आए हैं। आप लेके जाओगे कितना हंग ला लियो सरकार, कितना टेम ला। तो यहाँ पे आके इतना प्यार दिखाई दे रहा है कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आपका दिल लगेगा घर में जाके? मैं मोदी को एक चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कूटनीति, फूटनीति, लूट नीति, झूठ नीति के चारों सतम फैल हो चुके हैं किसानों के सामने। कर्मचारी रूठता है तो कानून तोड़ता है, किसान जब रूठता है तो कानून नहीं सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। भोलेनाथ को इतना तंग ना करिए ऊब बैठे। अगर इसने शंखनाथ बजा दिया तो तेरी थाली और थाली की आवाज दब जाएगी, नभ मदामनी चमकेगी, धरती फट जाएगी, हिमालय हिल जाएगा। हमारी तो औकात क्या मोदी, आपका भी नामो निशान मिट जाएगा। मोदी जी दिया वोट कौन सी को? मोदी को दिया ने को खट्टर को दिया है तो वहां बन रहेगी देहंगा। तक किन्ने की समर्था भी क्यों तक तुसी ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਪੇ। कितना भी टाइम लग जाओ जी, चाहे साल भर लग जाओ जी, हमारे तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतने यहीं डटे रहेंगे। वह बिकली किसान है, वह तो बाढ़ के टट्टू हैं। वही यही इल्जाम वो सेम आपके ऊपर लगाते हैं। हमारे 2 लड़के हैं फौज में, एक पठानकोट है, बीकानेर। हम यहाँ रह रहे 2 महीने से। आर्मी के जो कैलेंडर होते हैं उसमें अभी लिख दिया है जय जवान जय विज्ञान। तो आपको कैसे लगा इनके भाइयों का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आपकी तो फैक्ट्री है, आपको तो काम कर नहीं रहे खेती का। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠ ਹੈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਇਹ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਓ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖਰੇਵਾਂਪਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है भाई। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? सतवीर धनाना, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? 84 खाप धनाना। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ आए ने। हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान सब 2 कदम आगे लगने में भाईचारा बन रहा बढ़िया। हमारा ये कहने ये भैया ने ये तंबू लगाया, हमारा खाने का लंगर लगा रखा था हमने सब भैया के लिए, और हमने भाई यो पंजाब वाले पूरी मदद है, और हम पंजाब वाले वहाँ के भाई हैं और वो हमारी पूरी मदद करें पंजाब वाले।
और जो उसमें टीवी पे ये दिखाया जाता है भी हाँ हरियाणा के जो किसान मदद नहीं करते वो कितना गलत दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? ये मीडिया वाले हैं ना, ये जमा सरासरी झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा भी पंजाब बराबर के भाई आ रहे कि हैं। हरियाणा के किसान को बदनाम करने की साजिश है उनकी। हाँ, हरियाणा के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हरियाणा के किसान इतने आ रहे हैं कि बेअंत में सब भाई मिलके खूब आ रहे हैं, जितने भी आने चाहिए तो और भी आऊंगे। हरियाणा वाले तो भाई जी जान के ला रहे हैं। तो आपके जो खट्टर सरकार है उन्होंने तो आपको बदनाम करने के लिए यहाँ पे कितना कुछ किया है, तो उसके बारे में क्या खट्टर सरकार तो किमें भी नहीं है। खट्टर सरकार का नाम में लेना बंद कर दो तो अच्छा रहोगे। सरकार खट्टर तो एक हमारा गला दुष्व्यवहार कर रही है कि हमें यहाँ रास्ते रोक जाते हैं, वहाँ की में कर लेते हैं। खट्टर सरकार करके रही है। सरकार खट्टर सरकार तो ऐसा काम करी है कि हमें आतंकवादी बना दिए, पाकिस्तानी बना दिए। वो हमारे बयान थे, हम मिले मंत्री। अगर उनको लगता भी यहाँ आतंकवादी कोई है, खालिस्तानी कोई है, तो किसान उनको यहाँ उठा जा रहे हैं। तो उनके अरे उठा रुको के यार, यहाँ रहे। तो उनके उठा के जेल में क्यों नहीं डालती वो? हैं नु डालने की उनकी हिम्मत नहीं। क्यों? उन्हें झूठ बोलना है। उनकी एक चीज बताओ, आप समझो सारे, बताओ आतंकवादी यार करी हमारी किसाना की। अगर सरकार चाहो ना देख के न पूछ लेना और उसकी वो किताब उठा के लिया ना, हम उसके रिकॉर्ड दिखावांगे। वो न वो किसी ने बैठा लेते हैं तो एक किसान आ गए, वो किसान नहीं है, वह बीजेपी के आरएस के, वो किसान कितने इकट्ठे कर लो। किसान करीम यहाँ आ रही है। हरियाणा पंजाब की सारे सारे विषय होगी। तो यहाँ पे किसान पंजाब के आए हैं, पंजाब के नहीं अकेले आए हैं, पूरे देश के किसान इकट्ठे हुए हैं, तो आपको इतनी बड़ी सेवा करने का मौका मिला, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया लगा, हमने भाईचारा मिला हर जमा, बहुत ही बढ़िया लगा। भाईचारा में से हमने भाईचारा मिल गया हमारा। आगे का हमने भैया है कि भैया के भाई हो गए। और आड़त ये आंदोलन है ना, ये आंदोलन तो ये सबका है, मतलब सारा विषयों का है। ये तो इसमें सरकार क्यों नहीं झुक रही है? सरकार बकवास करी हमारे गले, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या हम मुकदमा जितना रहे हैं ना को हम वो थोड़े बहुत रह रहे कल्चर में ही है छो भी उठ जाए ना। एक बताओ ना, हम ना हमें एक लोग बताओ, और यहाँ आप बताओ साहब, हम यहाँ कोई आतंकवादी हैं? यहाँ हम माच क्या रहे हैं? हम आ रहे हैं अपना अपना हक लेने आए हैं। आप लेके जाओगे, कितना हंग ला लियो सरकार, कितना टाइम ला दियो। तो गोदी मीडिया पे लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि यहाँ पे खालिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, जहाँ वामपंथियों ने यहाँ पे हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को। क्या बोलोगे उस गोदी मीडिया के बारे में? देखो जी, गोदी मीडिया के बारे में सबसे पहले बात तो ये है कि गोदी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है जी। जो तो यहाँ उनको गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी में जाके बैठ गई है। हाँ, ये उन्हीं की रिपोर्ट दिखा रही जी, जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। जैसे कि हमारे देसी पत्रकार है जी, पंजाब से है, हरियाणा से है, हमारी सोशल मीडिया पे ही चल रही है जी, जितनी भी न्यूज चल रही है। जो गोदी मीडिया इंटरनेशनल है ना अपनी, वो किसान का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठा रही। मेन बात ये है जी। तो यहाँ पे आके कितना प्यार दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके इतना प्यार दिखाई दे रहा है कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आपका दिल लगेगा घर में जाके यहाँ पे? नहीं लगेगा जी, भाई याद आएंगे। मैं मोदी को एक चेतावनी देना चाहता हूँ जी। कूटनीति, फूटनीति, लूट नीति, झूठ नीति के चारों सतम फैल हो चुके हैं किसानों के सामने, और नई सभ्यता के लक्षण है क्रियाशीलता और जागृति। किसान जब कर्मचारी रूठता है तो कानून तोड़ता है, किसान जब रूठता है तो कानून नहीं सरकार की पीठ भी तोड़ेगा। मोदी से कहना चाहता हूँ, इस भोलेनाथ को इतना तंग ना करिए ऊब बैठे। अगर इसने शंखनाथ बजा दिया तो तेरी थाली और थाली की आवाज़ दब जाएगी, नभ मदामनी चमकेगी, धरती फट जाएगी, हिमालय हिल जाएगा। हमारी तो औकात क्या है मोदी, आपका भी नामो निशान मिट जाएगा। तो आपने कहीं उनको, मोदी साहब को वोट भी तो आप ही नहीं दिया था। आपकी खट्टर सरकार आपकी अभी वो जीत के आई है, 2 बार मोदी जीत। दिया वोट, कौन सी को मोदी को दिया ने, को खट्टर को दिया है, तो उन्हें बढ़ने की देंगे। तो वोट किसने दिया उसको? हमने नहीं दिया साहब। केवीएम मशीन ना मंड करके करे काम ने। क्या आप बिल्कुल खिलाफ होंगे? बिल्कुल खिलाफ, हाँ बिल्कुल खिलाफ रहेंगे, और हम भाईचारा बना के रखेंगे हमारा पंजाब का। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਭੀੜ ਮੈਮਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਜੀ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਮਸਕੀ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਮਰੱਥਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੇਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੱਪੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਨਾ? भाइयों के साथ साथ कितना भी सह भी नहीं लगो, सह भी नहीं तो में सुना रहे हैं भंडारा खोल रखा है। पंजाब हरियाणा राजस्थान सारा किसान भाई एक है। कितना भी टाइम लग जाओ जी, चाहे साल भर लग जाओ जी, हमारे तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, इतना यहीं ठहरेंगे। सब इन्हें का राशन ले रहा है, गांव से रोड आता है, सूप कुछ बांटते हैं, हर एक चीज़ की सुविधा है, डॉक्टर की हर एक चीज़ की छोटर लेगी। दूसरे में ले दिल्ली में ही बैठे हम संसद के भीतर। कई किसानों को ऐसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जाता है भी हाँ वो बिल के समर्थन में आते हैं भी हाँ ये बिल बहुत अच्छे हैं, तो उन किसानों के बारे में क्या बोलोगे? वह बिकली किसान है, वह तो बाढ़ के टट्टू हैं। और वही यही इल्जाम वो सेम आपके ऊपर लगाते हैं कि जो यहाँ किसान बैठे हैं वो भी नकली किसान है। ये असली किसान है, देश का अन्नदाता है। यहाँ आके देखो वह हमारे से बतला गया, सीधे आओ हमको सीधी कहो कि दिखाओ। ये सारी राजनीतिक बातें हैं। 5-4 ये तो ये देश को खत्म करना चाहो ने, ये चमचे ये चला रहे हैं। ये बात चीन वाला आ गया, हमारे बेटे सीमा पर है, हमारे 2 लड़के हैं फौज में, एक पठानकोट है, बीकानेर, हम यहाँ रह रहे 2 महीने से। तो ये मिसाल है, एक बेटा बॉर्डर के ऊपर वहाँ पे रह के देश की रक्षा कर रहा है और पिताजी उनके यहाँ पे आके अपने हक की रक्षा कर रहे हैं, अपने यहाँ जमीन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे डटे हुए हैं। एक मिसाल है, बेटा वहाँ पे और बाप यहाँ पे, दोनों एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार को रखा क्या नहीं जी, जय जवान जय किसान। आज किसान को ये देख कैसे हालत। मैं एक बात अभी यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ, जो नारा ये था जय जवान जय किसान का, और सरकार ने इसको अभी बदल दिया है। आपको पता होना चाहिए, आर्मी के जो कैलेंडर होते हैं उसमें अभी लिख दिया है जय जवान जय विज्ञान। किसान को वहाँ से उन्होंने साफ कर दिया है। तो शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उस कैलेंडर में पहले लिखा होता था जय जवान जय किसान, और वहाँ पे अभी जय जवान जय विज्ञान कर दिया है। किसान का कोई खाना ही वहाँ से निकाल दिया गया है, और वही चीज अभी जमीन पे करना चाहते हैं। जो ये जो रोटी खा रहे हैं बढ़िया, उसको खत्म करने के लिए सरकार की ये नीति बड़ी गलत नीति है। हाँ जी, तो अगे भी अगे दे हालात भी दिखाने हैं किवें इत्थे किसान वीर जिहड़ा ये नैरेटिव सैट किया जाता है। कुछ किसान ने, पर देखो दूर दूर तक ट्रालियां खड़ियां ने ते लंगर इत्थे 24 घंटे चलता है। आ देखोगे लकड़ किवें आई है। कहते ने ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ नहीं, आ देख लो ਲੱਕੜ ਕਿੱਡਾ ट्राली भर के ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਸੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇਖੋ ट्राली ਭਰ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਲੱਕੜ ट्राली ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ, ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ? ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ? ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਘੱਟ ਦੀ ਭਰੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟਰਾਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਭਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਭਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੁੰਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ, ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹ।
ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਸਾਰਾ ਲੱਕੜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਾ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, अपने पंजाबियों के वीरों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए जलेबियाँ कट रहे हैं। आप कहाँ से आए हो सर? मैं बहादुरगढ़ से हूँ। दनाना गांव है हमारा, गांव दनाना। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे किसानों के अपने भाइयों के साथ आया हूँ। क्या जॉब करते थे आप? मेरी खुद की फैक्ट्री है बहादुरगढ़ में। ओके। हाँ जी, तो भाइयों का सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पर तो आपको कैसे लगा इनके भाइयों का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आपकी तो फैक्ट्री है, आप तो काम कर नहीं रहे खेती का? हमारी जड़ तो वही है, जड़ तो हमारी खेती ही है। दादा भाई चाचा ताऊ हमारे यहीं पर है, सारी खेती करते हैं। जी जी। आपने देख लिया, ये देखो किस तरह किमें जलेबियां ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाबी मीडिया यूएसए तो मैं मनदीप सिंह टिकरी बॉर्डर।